آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ملتان کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 15 سے 20% اضافہ کر دیا ہے۔ مزید دیکھیے وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور کاری وار۔ حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہی ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے کرایہ بڑھانے پر مجبور کیا۔ 200 روپے کرایہ بڑھا دیے ہم نے بھی، مجبوری ہے ہماری بھی، ہمیں پیٹرول مہنگا مل رہا ہے، ہم نے بڑھانا ہے، ہم نے اپنی جیب سے تو نہیں دینے۔ تو مطلب ہے گورنمنٹ کو کچھ چاہیے یہ کچھ اپنا خیال کرے، اپنا غریب لوگ ہیں روزگار نہیں دے سکتے، مطلب ہے یہ تو مارنے کے چکر میں ہے۔ ملتان سے راولپنڈی کا کرایہ 1150 سے بڑھا کر 1250، کوٹ مٹھن 300 سے بڑھا کر 400، چکوال 1000 سے بڑھا کر 1100، کراچی 2000 سے بڑھا کر 2200، جبکہ ملتان سے لاہور کا کرایہ 700 سے بڑھا کر 800 روپے کر دیا گیا۔ کرائے بڑھنے سے مسافر خاصا پریشان نظر آئے۔ اب ہمیں اور ذلیل نہ کرے، خدا کے لیے ہمیں ہماری جان چھوڑ دے۔ ہم نے اسے مسیحا بنایا تھا لیکن وہ ظالم نکلا ہے، غریبوں کا جینا حرام کر دیا اس نے۔ غریب مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، بس ہماری یہی التجا ہے کہ ہماری جان چھوڑ دے۔ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے 15 سے 20% تک کرائے بڑھانے پر شہری حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے باعث ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں، جن سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ پیٹرول، گھی، آٹا اور چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ، شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ عوام تبدیلی سرکار کے دور میں ریلیف کو ترس گئی۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا طوفان بے قابو ہونے پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے گھر کا بجٹ شدید متاثر ہوا، آمدنی 98 تو خرچہ 10 روپیہ ہو گیا۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ سر مہنگائی کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ عمران خان صاحب نے کربلا بپا کیا ہوا ہے اس ملک میں۔ میں نے خود عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس خدا کا خوف کریں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کو رپورٹیں دینے والے آپ کے وزیر مشیر کیا بتا رہے ہیں۔ لوگ بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں، بل جو ہیں وہ لوگوں کی کیپیسٹی سے زیادہ ہیں۔ میں ایز اے سوشل ورکر بھی میں ایسے گھروں کی آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ تیار ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول خریدتے ہیں تو چینی کے پیسے نہیں بچتے، چینی خریدتے ہیں تو گھی نہیں خرید سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر جتوایا مگر ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ مہنگائی کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ دور کی بات کیا ہے، پیٹرول دیکھ لیں، پیٹرول بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس نے کام پہ جانا ہے، اس کی سیلری 15,000 ہے، وہ پیٹرول ڈلوائے، اپنے گھر کا خرچہ چلائے، اس کا گھر رینٹ کا ہے، وہ کیا کیا چیز پوری کرے گا؟ گھی مہنگا ہے، چاول مہنگا ہے، دالیں مہنگی ہیں، ہر چیز غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور عام آدمی کو ریلیف دے تاکہ مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ پارٹی صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں اور مارچ ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف نے ٹیلی فون پر مشاورت کی ہے۔ نون لیگ کی بدترین مہنگائی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کے فیصلے کی توثیق۔ اپوزیشن جماعتوں سے مل کر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پارٹی صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پیٹرول مہنگا کرنے پر حکومت تنقید کی زد میں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا سجاد کہتے ہیں ملک میں آئی ایم ایف کا ایجنڈا چل رہا ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا ایجنڈا اس وقت ملک میں چل رہا ہے۔ رانا سجاد نے ایسا کہا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے حکومت لوٹ رہی ہے، ملک میں بدترین حکومت مسلط ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ایسا چلتا رہا تو عوام سڑکوں پر ہوں گے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جائیں گے، غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا؟ پیٹرول مصنوعات میں اضافے کے باعث اب ہر چیز مہنگی ہوگی۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम और सियासी हलकों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुल्तान राना इकबाल सराज कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ना निकले तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना इकबाल सराज का कहना है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुका है। मौजूदा हुकूमत अवाम से वोट देने का बदला ले रही है। पूरी कौम को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उठना होगा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ना निकले तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी का मुल्तान में एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुल्तान डेरा डब चौक पर एहतजाज किया। मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा इसरार हुसैन ने की। रोहित से गुफ्तगू करते हुए इसरार हुसैन का कहना था कि हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आम आदमी के पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत की बदतरीन नहली सामने आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दें और घर जाएं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़िले सदर जाफर अली शाह के मुल्तान में रोहित से गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी है। मुल्तान में रोहित से बात करते हुए जाफर अली शाह का कहना था कि हुकूमत ने ताजरों का जीना मुहाल कर दिया है। जब हुकूमत आई थी तब पेट्रोल की कीमत 70 रुपये थी। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि वो दिन याद करें जब उन्होंने महंगाई के खिलाफ धरना दिया था। उन्होंने कहा कि जिस समत में मुल्क जा रहा है जल्द मुआशी तौर पर नागवार हालात का सामना करना पड़ेगा। अंजुमन ताजरान शुजाबाद के वफ्द की मुल्तान चैम्बर आमद हुई। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन को सदर बनने पर मुबारकबाद दी गई। मसाइल से भी आगाह किया गया। इस मौका पर हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। नौ मुंतखब सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन को अंजुमन ताजरान शुजाबाद ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर अंजुमन ताजरान शुजाबाद के वफ्द का कहना था कि जनूबी पंजाब पसमानदा इलाका है, यहाँ मसाइल भी ज्यादा हैं। छोटे सनतकारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। स्टेट बैंक भी कर्जे में आसानियाँ पैदा करे। तो हमने इनसे गुजारिश की है कि छोटी जो सनतें हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। टैक्सेस के हवाले से उन्हें कमी रियायत दी जाए और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक से गुजारिश की जाए कि जो छोटे लोन हैं, छोटे कारोबारों के लिए लोन में आसानियाँ पैदा की जाए। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना था कि अंजुमन ताजरान शुजाबाद की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाएगी। मुल्तान चैम्बर ताजरों के मसाइल के लिए मौजूद है। मोहब्बतों के फूल निछावर किए हमारे पर, हम इनके शुक्रगुजार हैं और इन्होंने जो अपने मसाइल बताए हैं, मैं कोशिश करूंगा अरबाब इख्तियार तक मसाइल पहुंचा के इनके मसाइल हल करवाएं। हम इसलिए मुल्तान चैम्बर की कुर्सी पर बैठे हैं ताकि अपने ताजरों के मसाइल हल करवा सकें। ताजरों के वफ्द ने हुकूमत से टैक्सेस में कमी लाने का मुतालबा कर दिया ताकि कारोबार पर मस्बत असरात मुरतब हों। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जामपुर में नजायज मुनाफाखोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक इन एक्शन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 3 दुकानें सील कर दी। भट्टा खिश समेत दुकानदारों को 25,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। दौरान कार्रवाई चीनी महंगी फरोख्त करने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि भट्टा खिश पर भूसा और टायर जलाने वाले भट्टा मालिकान को भी जुर्माना आयद किया गया। इस मौका पर मलिक फारूक अहमद का कहना था कि उन्होंने दुकानदारों को तनबीह की है कि वो नाजायज मुनाफाखोरी से बाज आ जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा भट्टा मालिकान को भी हिदायत की गई कि भूसा, टायर और दीगर अशिया जिससे स्मोक का खतरा है वो जलाने से बाज आ जाएं, वरना उनके भट्टे सील कर दिए जाएंगे। अभी आपको ब्रेकिंग दें। एमएलसी में बगैर मंजूरी के नाज थिएटर में ड्रामा शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात ना ही कोरोना शोपीस का ख्याल रखा गया। ग्रीन रूम में भी गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री। ड्रामे के दौरान डांस में तमाशबीनी। ड्रामे देखने वाले फनकारों की फरमाइश पर नोट फेंकने लगे। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुल्तान चौधरी ताहिर महमूद का कहना है कि नाज थिएटर में चलने वाले ड्रामे वाह बई वाह के स्क्रिप्ट की मंजूरी नहीं है। मुतल्लिका डीसी का काम है स्क्रिप्ट की इजाजत के बगैर कैसे ड्रामा चल रहा है। एमएलसी में बगैर मंजूरी के नाज थिएटर में ड्रामा शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ना ही कोरोना एसओपीज का ख्याल रखा गया। ग्रीन रूम में भी गैर मुतल्लिका अफराद की एंट्री। ड्रामे के दौरान डांस में तमाशबीनी। ड्रामा देखने वाले फनकारों की जानिब से फरमाइश पर नोट फेंकने लगे। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुल्तान चौधरी ताहिर महमूद का कहना है कि नाज थिएटर में चलने वाले ड्रामे वाह बई वाह के स्क्रिप्ट की मंजूरी नहीं है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CPO मुल्तान मुनीर मसूद ने मुतादिद एहलकारों के ट्रांसफ़र कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एहलकारों को मुख्तलिफ थानों में तैनात किया गया है। CPO मुल्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल शहजाद सिद्दीक थाना जलीलाबाद, शफकत रसूल थाना मुजफ्फराबाद, जबकि कांस्टेबल शहजाद रजा, सजाद हुसैन, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नदीम को थाना चहलक तैनात किया गया। कांस्टेबल जावेद खान मोहम्मद सुहेल मुहाफिज स्क्वाड से पुलिस लाइन तब्दील। कांस्टेबल फारूकुल हसन थाना कुतबपुर, अहमद अली थाना शाह शम्स तैनात हुए हैं। ज़ियाउर रहमान को थाना दिल्ली गेट, मोहम्मद अहमद कबीर थाना लोहारी गेट, कांस्टेबल हमादुल हसन फैसल व्यास को थाना कादिरपुरा, जबकि जावेद इकबाल को थाना गुलगश्त और इमरान अनीस को थाना सदर में तैनात किया गया है। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 16 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। CPO मुल्तान मार्च ने अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्तान पुलिस में तकर्री और तबादलों के अहकाम जारी किए गए। 16 एहलकारों को पुलिस लाइन से हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद, आमिर महमूद, नज़ाकत अली, अल्ताफ हुसैन को तैनात किया गया, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल, शुएब मेहदी, मोहम्मद तारिक, आमिर हुसैन, मोहम्मद यासीन हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। कांस्टेबल आसिफ खान, मोहम्मद अफजल, वकास अली, फरूक अहमद, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद जुहेब, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इरफान हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। CPO की जानिब से तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेंगू ने डंग तेज कर लिया। विक्टोरिया अस्पताल में मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। 24 घंटों के दौरान नवाबसर सादिक अस्पताल में 13 नए पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह मरीजों की मजमूई तादाद 75 हो गई है। बहावलपुर में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नवाबसर सादिक अस्पताल में 13 नए मरीज आए हैं, जबकि अक्टूबर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 75 हो गई। इसी तरह रवा साल डेंगू के मरीजों को टोटल तादाद जो है वो 84 हो गई है। नवाबसर सादिक अस्पताल में 16 मरीज ज़ेर इलाज हैं, ताहम बहावलपुर का कोई भी मकामी शख्स अस्पताल दाखिल नहीं हुआ। BHU फाजिलपुर आवारा कुत्तों की आमाजगा बन गया है। अमले की गैर मौजूदगी पर सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने नोटिस ले लिया। CO हेल्थ राजनपुर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने मीडिया पर नशर होने वाली खबर पर नोटिस ले लिया, जिस पर CO हेल्थ राजनपुर से रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि ड्यूटी पर गैर हाजिर अमले और डॉक्टर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि शहरियों को तिब्बी सहूलियात की अदम फ्राहमी पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुल्तान में बहावलपुर तलीमी बोर्ड के शानदार नताइज। मुतादिद तलबा और तालिबात मैट्रिक के इम्तिहान में 100%, जबकि सैकड़ों तलबा और तालिबात ने 1000 से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। तलबा ने अपनी शानदार कामयाबी का सेहरा असातिज़ा के सर से ला दिया। शुजाबाद के 7 तलबा ने 100% और 102 तलबा ने 1000 से ज्यादा नंबर हासिल किए। शुजाबाद की शानसा दिल, रदा फातिमा, शुमाइला बीबी, अली इशफाक, मोहम्मद शहजाद, राना दानिश और यासिर सदीकी ने 100% नंबर हासिल किए। अल्लाह का बहुत शुक्र है सबसे पहले तो, उसके बाद मेरे इदारे की, असातिज़ा की और वालिदैन की दुआएं ही थी जिसका ये समर है। माशाल्लाह बच्चे भी मेहनत का जवाब मेहनत से देते हैं। खानेवाल के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के तालिब इल्म सलमान खान ने मैट्रिक इम्तिहान में 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। कहते हैं शानदार कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने मुझे इस कामयाबी तक पहुँचाया और मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत भी की, दिन में इसको बहुत वक्त दिया। अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमारे बेटे को बोर्ड में नुमाया पोजीशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिनकी मेहरबानी की वजह से और जिनके फजलो करम की वजह से आज मेरे बेटे ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। दुनियापुर से निजी स्कूल की होनहार तालिबा सबीहा शफकत ने 100% नंबर हासिल करके अपने इदारे और वालिदैन का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स जिनकी दुआओं का नतीजा है, फिर मेरे टीचर्स जिनकी मेहनत की वजह से मैं इस काबिल बनी कि मैंने इतने नंबर्स को अचीव किया। मेरी बच्ची ने 1100 में से 1100 नंबर लेकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अलीपुर में आसिफ सलीम स्कूल के 7 तलबा ने मैट्रिक में 100% नंबर हासिल किए। कहते हैं शानदार कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा करम है। आज अगर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरे नंबर हासिल किए हैं। अल्लाह ताला का करम है और असातिज़ा कराम की मेहनत है।
اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بورے والا کی 30 طلباء و طالبات نے 100% نمبر حاصل کیے۔ کنزل ایمان اور نور فاطمہ کا کہنا تھا کہ بڑی کامیابی اساتذہ کی محنت، والدین کی دعاؤں اور اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی۔ عمر زبیر کا کہنا تھا کہ ہمارے ٹیچرز نے بہت محنت سے پڑھایا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے اپنے رحمتیں ہم پر نازل کی، جس کے سبب ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی میں سب سے زیادہ رول میرے ٹیچر کا، جنہوں نے مجھ پر ہارڈ ورکنگ کی اور میرے کنسیپٹ کلیئر کیے۔ اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنے ٹیچرز کا احترام کریں اور انہوں کی عزت کریں۔ رنگپور کے نجی اسکول کے متعدد طلبہ بھی میٹرک امتحان میں 100% نمبر حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ عیشا ندیم، اسرار محسن، فرحان سعید، فریحہ الطاف، افشین بی بی کا کہنا تھا کہ شاندار کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے 1100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میرے ٹیچرز کی محنت تھی، انہوں نے مجھے اتنی محنت سے پڑھایا اور میرے والدین کا تعاون تھا، ان کی دعاؤں سے میرے اتنے اچھے نمبر آئے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں تو اپنے استاذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی محنت کروائی ہے، اور اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی دعاؤں کا صلہ مجھے یہ اچھے نمبر ملے۔ منچن آباد کی ہونہار طالبہ عائشہ یونس نے بہاولپور بورڈ میں 100% نمبر حاصل کر کے اپنے ادارے اور والدین کا سر فخر سے بلند کیا، جبکہ سٹی گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی 10 طالبات نے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے، اور اس کے بعد میں محنت کے ساتھ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میٹرک کے امتحان میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کے والدین خوش ہیں، مستقبل میں مزید شاندار کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ ملتان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ شہر بھر کی عمارتوں اور بازاروں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ عاشقان رسول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، عقیدت اور احترام سے منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہر اولیا ملتان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر بھر کی مساجد، عمارتوں، بازاروں اور گھروں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ شہری نلین مبارک روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہات اور بیجز کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ہم اس دن کو بہت اچھی طریقے سے منائیں گے، جھنڈیاں لینے آئے ہوئے ہیں اور ٹوپیاں وغیرہ، بیج وغیرہ لیں گے، تو ہم اس دن کو بہت اچھے طریقے سے منائیں گے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے گلی گلی کریا کریا چراغاں کر دیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عاشقان رسول بڑی تعداد میں جھنڈے، جھنڈیاں، نلین مبارک اور روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہات خرید رہے ہیں۔ یہاں پر نلین مبارک ہو گیا، کیپس وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے، نلین مبارک کی، اور جھنڈے ہیں، اس طرح کی کافی ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے، اور لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ ڈیکوریشن کے حوالے سے وہ نلین مبارک لے رہے ہیں، مور نبوت لے رہے ہیں، اور بیچز وغیرہ اس طرح کی لڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس، وہ لے رہے ہیں لوگ۔ عاشقان رسول ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت اور احترام سے منانے کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ شہر اولیا میں عید میلاد النبی کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر کی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے انتہائی عقیدت کا حامل ہے، اس دن کو ہم انتہائی جوش و خروش سے منائیں گے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ملتان کی رابی کلاتھ مارکیٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ شرکاء محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے ساتھ ساتھ ذکر نبی سے اپنے دلوں کو خوب گرما رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ رابی کلاتھ مارکیٹ ملتان کے جہاں عشرہ رحمت للعالمین کے حوالے سے محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے۔ محفل میلاد میں MN عامر ڈوگر، MP حاجی جاوید اختر انصاری، پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی، مرکزی چیئرمین تنظیم تاجران خواجہ سلیمان صدیقی، صدر جنوبی پنجاب تنظیم تاجران شیخ جاوید اختر، صدر رابی مارکیٹ حافظ عمران سجاد قریشی، جنرل سیکرٹری حماد جاوید اختر اور نائب صدر ندیم شیخ سمیت عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے قلوب کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے منور کیا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی مبارک روحوں کو جمع فرمایا اور تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر رب کائنات نے ان انبیاء سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا۔
महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में सजादा नशीन दरगाह हामदिया कारी नासिर मियाँ, हाजी मुनीर अंसारी, सैयद इक़्तिदार जैदी, हाजी मंजूर कादरी, शेख इल्ताफ, हाजी असलम कुरैशी, अरशद कंबो, ताहिर कंबो, सदर मवेशी मंडी शेख बिलाल समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई। दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के रुकन कारी मोहम्मद सलीम अत्तारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठा लो, कुल तुस्मा, महबूब कह दो तुम्हारी बात को सुना जाएगा, सल तोता, सवाल करो तुम्हें अता किया जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, महबूब शफात करो तुम्हारी शफात को कबूल किया जाएगा। महफिल मिलाद में नादखा हजरात ने आकाए नामदार की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। मुल्क को कौम के सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर 1 M5 सेक्टर ने सजाई महफिल मिलाद। मुल्तान ऑफिस में मुनक्किदा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज अहमद, DSP लाइन हेडक्वार्टर मसरूर अली, PSO असगर शाहिद समेत तमाम स्टाफ ने शिरकत की है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने पेश किए। SP राना सरफराज अहमद का कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर अमल करने से सभी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। रंगपुर में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़रिए तमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से मशअल बरदार जुलूस निकाला गया। जुलूस जनाब चौक से शुरू होकर मस्जिद गुलजार हबीब पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। मशअल बरदार जुलूस में अंजुमन तलबा इस्लाम के ओहदेदारान और कारकुनान समेत आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस में अंजुमन तलबा इस्लाम मुजफ्फरगढ़ के ज़िला नायब सदर राशिद बलोच, तहसील नाजिम खलील सामल, नाजिम रंगपुर परवेज शेख समेत आशिकान रसूल राव मोहम्मद अकमल, सईद अहमद मिलाना, कारी नूर मोहम्मद, मुनीर अहमद मुस्तफ़ाई भी शरीक हुए। आमते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। रहीम यार खान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से मसीही बरादरी ने भी सिरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सिरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस की एहतमाम सोशल वर्कर अमैनुअल आमी की जानिब से किया गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में शाफ़े मैशरत ताजदार अरबो अजम के मिलाद की खुशियाँ जहाँ मुसलमान भाई मना रहे हैं, वहीं मसीही बरादरी भी किसी से पीछे नहीं। इमानुअल आमी ने सोहने मिनटाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस सजाकर मुसलमान भाइयों के लिए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का पैगाम दिया कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं। ये जमीन क्या जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं। यानी उसकी मोहब्बतें आप हमसे बांट के देखें, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मरकजी सदर शिया सुप्रीम काउंसिल बाबर जमान, मेंबर अमन कमेटी हाजा मोहम्मद अदरीस, हिंदू बरादरी के रहनुमा बाबा गुरु सिख देव जी, डिवीजन सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान रियाज अहमद नूरी, मजहबी स्कॉलर्स, अकलीती रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। खुदा ने खुद को कहा रब्बुल आलमीन, तो कहना पड़ा महबूब को, महबूब तू तो रहमतुल लिल आलमीन है। अगर मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो मैं जब बन्नास तक था तू भी बन्नास तक था, जब मैं आलमीन के लिए हूँ तो तू भी आलमीन के लिए। शिया सुप्रीम काउंसिल के मरकजी सदर बाबर जमान का कहना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। जिस जात के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, इस्लाम में कुरान और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हम लोगों के लिए एक गाइड की हैसियत रखती है। मजहबी स्कॉलर्स और शुरका का कहना था कि आके नामदार के उसमें हसना पर अमल करके ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यार खान। थाना सिटी डीजी खान में महफिल मिलाद सजाई गई। पाक महफिल में मारूफ नातखा हजरात, पुलिस एहलकारों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
अशरा शान रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पंजाब भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। इसी मुनासबत से डेरा गाजी खान के मॉडल थाना सिटी में भी महफिल मिलाद सजाई गई। SHO नदीम हैदर की मेजबानी में सजी महफिल मिलाद में मारूफ नाथ खान हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश किए और हाज़रीन ने महफिल के दिलों को खूब गरमाया। इस दफा थाना सिटी में भी माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया SHO सिटी नदीम हैदर साहब की तरफ से। इसमें हमें बड़ी खुशी हुई। इससे आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप है इंशाल्लाह उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। पूरे मुल्क पूरी दुनिया में सरकार की आमद के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। जो थाने के हवाले से ये पहला प्रोग्राम था और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। SHO थाना सिटी नदीम हैदर का कहना था कि थाने में मिलाद की महफिल सजाने की रिवायत आइंदा भी कायम रहेगी। थाना सिटी में पहली बार हमने ये प्रोग्राम किया है मिलाद के हवाले से, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 रबीउल अव्वल है, सरकार की आमद का महीना है। तो इसमें जो कुछ हो सकता था हमने प्रोग्राम किया, इनवाइट किया। एक तो तमाम मसालिक के लोग यहाँ सिटी के सारे शामिल हुए हैं। इससे तो एक खुशाइंदा और मजहबी रवादारी इससे शो होती है, जाहिर होती है। महफिल मिलाद के आखिर में दुरूद सलाम के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। अशरा शान रहमतुल्लाह आलमीन के सिलसिले में मुल्तान आर्ट्स काउंसिल खत्ताती का मुकाबला हुआ। डिवीजन भर से तलबा और तालिबात ने शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल में खत्ताती के मुकाबले हुए। डिवीजन भर से 30 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। उम्मीदवारों ने खूबसूरती के साथ कुरान पाक की आयात और अल्लाह के नाम लिखे। मुकाबले में 15 साल से 30 साल तक के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से सीखने को मिलता है। इस टाइप के जो खत्ताती कॉम्पिटिशन्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें मोटिवेशन आती है और जो टैलेंट है ये एक्सप्लोर करते हैं। अब इतने सारे डिफरेंट लोग आए हैं, डिफरेंट काम करें तो लोगों को देखने का मौका मिलता है। खत्ताती के मुकाबले में आए हैं और कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लिख रहे हैं। हमें 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। माशाल्लाह से हमारा कंप्लीट होने वाला है और इंशाल्लाह हमारा स्कूल ही जीतेगा और हम अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। सैयद अमार इकबाल ने पहली, राना राशिद ने दूसरी और ईशा हामिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स को 15,000, 12,000 और 9,000 रुपए बतौर इनाम दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद इकबाल का कहना था कि मुकाबलों का मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करना है। इसका एक तो मकसद जो है, उन्वान हमने इसका रखा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इसमें 15 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाईलाइट करना है और दूसरा जो खत्ताती की स्ट्रेंथ जिसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा था, उसको भी अपलिफ्ट करना है। सदारती अवार्ड याफ्ता खत्तात मोहम्मद मुख्तार अली और रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अनवर जमाल ने जजेस के फराइज अंजाम दिए और बच्चों की मेहनत को सराहा। खत्ताती के मुकाबले न सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं, बल्कि कुरान पाक से मोहब्बत और लगाव का जरिया भी बन रहे हैं। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।